کل کے شیر رضا نیٹورک کی وہ کمال حسن حضور ہیں کہ غمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بند اس پہ یہ جرتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ جو آپ ریکارڈنگ اب سماعت کریں گے، یہ جو شاہل حشمتی، پہلے انہوں نے اپنا نام بتایا شاہل حشمتی، اور کہا یہ کہ میں شرکار مشاہد ملت علیہ رحمہ سے بیعت ہوں، اور انہوں نے الیاس اتار کے جو الیاس اتار کا موقف ہے اس پہ اپنی بات رکھتے ہوئے، یعنی یہ نام تو لگایا کہ میں حشمتی ہوں، لیکن حقیقت میں حشمتی نہیں، انہوں نے اتاریت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، انہوں نے کہا میں اتاری ہوں۔ بعد میں پتہ چلا اس نے ایک اور رنگ بدلا، سب سے بڑی بریکنگ نیوز، اس نے ایک اور بعد میں رنگ بدلا کہ میں اتاری نہیں ہوں، میں اہل حدیث ہوں، سنیوں کو بریلویوں کو آپس میں لڑانے کا کام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ جو بات میں بتا رہا ہوں کہ وہ اہل حدیث ہے، یہ بات سننے میں آئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ کلپ بھی، وہ آڈیو بھی منظر عام پر بہت جلد آئے گی، آپ لوگ سماعت کریں گے۔ بہرحال اس نے کہا میں اتاری ہوں، اور الیاس اتار کے ٹاپک پر بات کرنا شروع کری، اور اس آڈیو سے اس سے کال ڈیبیٹ سے شروع ہونے سے پہلے آپس میں کیا بات ہوئی، اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ ذرا اس کے کچھ جملے سماعت کریں، اس کی کچھ جو اس نے آڈیو بھیجی ہیں اپنی آواز میں، تو اس کے عقائد، اس کی سوچ، اس کی نادانیت اور اس کی جاہلیت کا اندازہ اسی کی باتوں سے لگاتے ہیں۔ آئیے ساحل حشمتی پہلے بعد میں اتاری بن کر جو سامنے آیا، شاہل کی لیجئے، یہ جو دلی کا رہنے والا ہے اپنے آپ کو بتاتا ہے، تو اس کی پہلے اس نے کیا کرا کہ تمام سنیوں پر یہ کمنٹ کرتا ہے، حشمتیوں پر کمنٹ کرتا ہے، کہتا تم ایسے ہو، تم گالیاں بکتے ہو، لیکن حقیقت میں حشمتی گالی نہیں بکتا، چور کو چور کہنا گالی نہیں ہوتی بلکہ حقیقت ہوتی ہے، لیکن یہ چور کو چور کہنا گالی کہتے ہیں۔ بہرحال آپ لوگ یہ نے کہا کہ کوئی مجھ سے بات نہیں کر سکتا، کوئی مائک لال ہے ہی نہیں مجھ سے بات کرے، میں کرنا چاہتا ہوں، کوئی نہیں، کافی دن پریشان کرا دوستوں کو۔ اس کے بعد ہمارے ایک عزیز بھائی نے جب بہت پریشان کیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلیے انشاءاللہ میں اس سے بات کرتا ہوں۔ اب میں نے اس سے جو بات کری وہ سننے سے پہلے لمبی بات ہو گئی تھی، اس لیے وہ پارٹ 2 میں آئے گی، 2 پارٹوں میں وہ کلپ انشاءاللہ منظر عام پر آئے گی، تو اس لیے ابھی پہلا پارٹ اپلوڈ کیا جا رہا ہے، آپ لوگ سماعت کریں، اور پارٹ 2 بھی انشاءاللہ کل کے شیر رضا نیٹورک پر ہی آئے گا۔ تو اب آپ سماعت کریں، میری کال ڈیبیٹ سماعت کرنے سے پہلے آئیے اس کے چند جملے سماعت کرتے ہیں۔ پہلے اس نے کیا کہا، اپنا موقف کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، وہ ملایا جائے گا۔ لیجئے ساحل کی کال، لیجئے ساحل کی آواز میں ساحل کا موقف سماعت کریں۔ بھائی شیطان نام نہیں ہے اس کا نام ابلیس ہے، اور اس کا اصلی نام عزازیل ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے بھی اس کا نام چھپایا، اس کا نام جو ہے ظاہر ابلیس نہیں کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا۔ شیطان تو اس کا کام ہے، جو کام اس کو کرتا تھا اس کام کی نسبت سے اس کو شیطان کہا گیا۔ تو اسی طریقے سے وہابیوں کا نام لینا ضروری نہیں، وہابی کو جو ہے اشارہ کرنا ضروری ہے کہ یہ وہابی کیا ہے، دیوبندی کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم رد کرتے ہیں، ہمارا رد کرنے کا طریقہ جو ہے بالکل صحیح ہے، بالکل صاف ستھرا ہے، اور اس میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے، کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، اور اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق ہے الحمدللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا رد مد مذہب کرنا یہ جو ہے فرض عین ہے، تو ہم کر رہے ہیں، بس طریقہ الگ الگ ہے۔ بالکل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہوں، لیکن اس سے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کیا یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ دعوت اسلامی جو ہے وہ بد مذہبوں کا رد نہیں کرتی؟ تو تم جھوٹ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ دعوت اسلامی الحمدللہ بد مذہبوں کا سب سے زیادہ رد کرتی ہے، لیکن نام جو ہے لے کر نہیں کرتی، اس کے پیچھے یہ حکمت عملی ہے جسے تم سمجھ نہیں سکتے، اور نام لے کر جو ہے کسی جو ہے فرقے کا رد کرنا یہ فرض نہیں ہے، صرف جو ہے اس کا رد کرنا فرض اعظم ہے۔
نام لے یا نہ لے یہ ضروری نام لیا جائے. ارے بھائی جوتے کیا، ہم تو پتھر کھانے کو تیار ہیں. طائف میں جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ہے لوگوں نے پتھر تک مارے. تو اگر ہم ان کے امتی ہیں، اگر ہم پر کوئی پتھر بھی مارے تو بھی ہم صبر کریں گے، کہ وہ صبر جو ہے اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. تو الحمدللہ الیاس قادری جو ہے عاجز بندے کا نام ہے، جابر بندے کا نام نہیں. وہ تو کہتا ہی ہے کہ ہاں میں صبر کروں گا، اللہ مالک ہے. اسی شعر کو پکڑ لو اعلیٰ حضرت کے. اعلیٰ حضرت اشارہ فرماتے ہیں خاک ہو جائے عدو جل کر مگر اے رضا دم میں دم ہے جب تک ذکر ان کا سناتے جائیں گے. یعنی یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جو دشمن ہیں ان کو جلانے کے لیے ان کو گالیاں بکو، سمجھے نا، یہ نہیں فرمایا. یہ فرمایا کہ رسول اللہ کا ذکر کرو. اور ایک جگہ جب ارشاد فرماتے ہیں کہ دشمن احمد پر شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. تو دشمن جو ہے نا اس کا دل غیظ میں کب جلے گا؟ جب تم اس کو گالی دو گے، اس کو ذلیل کرو گے، تب نہیں جلے گا اس کا دل. اس کا دل جب جلے گا جب تم یا رسول اللہ کی کثرت کرو گے. اور یا رسول اللہ کی کثرت الحمدللہ جو ہے دعوت اسلامی میں ہی کثرت سے کی جاتی ہے. یا رسول اللہ اگر کوئی جو ہے سب سے زیادہ پڑھنے والی تنظیم کوئی ہے تو وہ جو ہے دعوت اسلامی ہے. سمجھے؟ جا کر تم جو ہے دعوت اسلامی کے ہر بیان میں دیکھو یا رسول اللہ کثرت سے زیادہ پڑھنے والی جو تنظیم ہے صرف دعوت اسلامی ہے. تمہارے مولوی جو جن کو سن کر تم بوکھلا گئے ہو، ان مولویوں میں بھی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ یا رسول اللہ اتنی کثرت سے پڑھ سکے. دیکھو تم شاید بولتے نا خواب غفلت میں ہو، ایک غفلت کے خواب میں جو ہے سو رہے ہو. تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ پوری دنیا میں سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رضی اللہ عنہ کا جھنڈا اگر کسی نے پھہرایا ہے تو وہ اس ذات کا نام جو ہے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب ہے. مولانا الیاس قادری صاحب نے پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کے جھنڈے کو جو ہے پھہرایا ہے. دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جاؤ، اگر اعلیٰ حضرت کو لوگ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو وہ جو ہے مولانا الیاس قادری کی وجہ سے. جاؤ دیکھ لو، جس ملک میں جو ہے اردو لوگوں کو نہیں پڑھنے آتی نا، اس ملک میں بھی جو ہے اعلیٰ حضرت کے گن لوگ گا رہے ہیں نا، تو یہ صرف مولانا الیاس قادری کی وجہ سے. بھائی یہ سب ویڈیو جو ہے، یہ فوٹو جو ہے نا، یہ سب بنائی گئی ہے دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کو بدنام کرنے کے لیے. تو لوگوں کے بہکاوے میں مت آؤ. لوگ جو ہے تمہیں بہکائیں گے، تمہیں دعوت اسلامی سے دور کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ تم صحیح راستے پہ آؤ. اور دعوت اسلامی کا راستہ جو ہے اصلاح کا راستہ ہے. دعوت اسلامی کا راستہ جو ہے دین سے قربت کا راستہ ہے. دعوت اسلامی کا راستہ جو ہے نیکیاں کمانے کا راستہ ہے. دیکھو پھر جہالت والی بات ہے. دعوت اسلامی کسی سے مارا پیٹا نہیں کرتی ہے. دعوت اسلامی کا کام ہے سب کو نیکی کی دعوت دینا، چاہے وہابی ہو، دیوبندی ہو، سارے لوگوں کو جو ہے کی اصلاح کرنا، سب کو مسلک حق، مسلک اہل سنت و جماعت اور صحیح العقیدہ مسلک پر لانا، لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کو نمازی، روزہ رکھنے والا، پرہیزگار بنانا. ہمارا کام مسجد بھرو تحریک ہے. ہمارا کام لوگوں کو مسجد تک لانا، لوگوں کو 5 وقت نمازی بنانا، یہ ہمارا کام ہے. یہ ہمارا کام لڑائی جھگڑا ہے ہی نہیں بالکل. سامعین اکرام، سنا آپ لوگوں نے اس نے اعلیٰ حضرت سرکار علیہ الرحمہ کے اشعار کو کیسے توڑ مروڑ کے پیش کرنے کی کوشش کی اور کیسی کیسی خواصتیں بکی اس نے. یہ تو آپ آگے ملاحظہ کریں گے اور جب سنیں گے تو اور دیکھیے یہ کیا کہتا ہے کہ مسلک کا امام الیاس ہے. اور یہ بھی کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے تو یہ فرمایا فتاوی تمہید ایمان شریف میں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایمان کے واقعی ہونے کے لیے 2 چیزیں زیادہ دو چیزوں کی درکار ہے. تو یہ کہتا ہے نہیں، اب ایک ہی چیز درکار ہے. میں نے کہا وہ ایک چیز کیا ہے؟ تو یہ کہتا ہے وہ ایک چیز یہ ہے کہ الیاس اتار کی جو ہے ان کی ساتھ چلا جائے، ان کے پیچھے چلا جائے اور الیاس اتار ہی کی بات مانی جائے. سمجھے؟ یعنی یہ کہتا ہے کہ الیاس صاحب کی اطاعت کرو.
जबकि आला हज़रत सरकार ने जो दो चीज़ें बयान करी हैं, पहली ये कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, दूसरी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से दुश्मनी, समझ रहे, उनके दुश्मन को सबसे बुरा जानना। ये बयान करी हदीस कुरान की रोशनी में, कुरान करीम की रोशनी में। लेकिन ये कहता है कि नहीं, ये नहीं, ये तो नहीं, एक ही चीज़ काफ़ी है। ये कहता है कि इलियास अत्तार साहब की इताअत करो। इसके जुमले कितने सख्त हैं, मुलाहिदा फरमाएं। अब लीजिए इससे कोल्ड डिबेट समाप्त करें, इसको जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इसका असली चेहरा पहचानें। आइए लीजिए कोल्ड डिबेट यहाँ से समाप्त करें। और उसके गलत जुमले जो अपने लोग, जब देखिए एक सवाल मैंने किया कि कोई इंसान पेशाब, पखाना, मनी और मज़ी को मदीने मुनव्वरा की तरफ निस्बत देता है, कहता है ये मदीने के फूल हैं, तो क्या है कि काफिर है। मैंने कहा वहाबी देवबंदी लिखे तो वो काफिर है। मैंने कहा रज़वी लिखे तो कि काफिर है। मैंने कहा हशमती लिखे तो काफिर है। मैंने कहा इलियास लिखे तो उस पर बोलता नहीं, ये देखा जाएगा कि उनका मौक़िफ़ क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने वाह रे वाह, ये शरीयत है। तो वाकई अवाम अहले सुन्नत के हाथ में है कि उसको किसकी बात मानना। अवाम अहले सुन्नत के, मैं एक वकील हूँ वकील, और अवाम अहले सुन्नत आप हज़रात जज हैं जज। मैं अपनी सिर्फ बात रख सकता हूँ, फैसला करना आपका काम है कि आपको इसकी मानना है, इलियास की मानना है, या कि सरकार आला हज़रत की। आप लोग खुद अपने कानों से इसकी ऑडियो समाप्त करें और फैसला आपके हाथ में है। चिराग जलाकर रख दिए हैं मैंने राहों में, अब कोई राह भटके ये उसकी अपनी किस्मत है। यहाँ से कोल्ड डिबेट समाप्त करें। हेलो हेलो हेलो, हाँ कौन? हाँ क्या नाम है, जरा को बताओ हम लोग कौन है? अरे हम बात कर रहे हैं यार, हैदराबाद से, उमर है नाम हमारा। तो कौन से मतलब से ताल्लुक रखते हो जी? कौन से मतलब से ताल्लुक रखते हो? अरे कौन देखो मतलब क्या तो भी मतलब। अच्छा, ये हम ये कह रहे कि इतने बुज़दिल मजहब में क्यों हो कि मतलब नाम बताने में भी शर्म आती है, क्या है ये? हम अरे यार सुनो, हम अपने जो है मसलक का तारुफ बता दे। अहले सुन्नत वल जमात हनफी बरेलवी मसलक से मैं ताल्लुक रखता हूँ। मेरा नाम आरिफ खान है, ठीक है, बरेलवी। तो आप तुम क्या हो, पहले अपना तारुफ कराओ फिर बात होगी। मैं करता हूँ, तुम तिरकों में बढ़ गए। हम हमारी पहले अपने जो है मसलक की बताओ, जो है कौन से मसलक से हो तुम, ये बताओ पहले। बस बात क्यों इतने बुज़दिल मजहब में हो यार? आरिफ साहब सुनने की हिम्मत पैदा करो। अरे यार तुमसे जो पूछ रहे वो तो बताओगे तभी तो सुनेंगे, या तुम बता, हम पूछ क्या रहे? नहीं यार, वो बताने दिए तो बताएंगे ना। हाँ बताइए। तारुफ जरा हमारा जरा बढ़ते रहता और जरा हटके रहता, तो सुनने की ताकत पैदा करो। अरे यार फिर यार ताकत और जो बुज़दिली बताओगे। तो आप सुनो ना। हाँ, हमारे इमाम रहबर कायदे आजम आला हजरत हकीमुल उम्मत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब तुम अंदाजा लगाओ हम कब से है और हमारी जमात कब से है, ठीक है? मतलब आप जो है 73 फिरके जो है आपने उसमें से एक फिरका अपना अलग बना लिया है। हमारी जमात है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जमात हक पे रहेगी, वो जमात हमारी जमात है। अच्छा। और इसके बारे में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, वो लोगों ने कहा कि ये जमात जो है तो अहले हदीस है। अहले हदीस अगर नहीं है तो मुझे नहीं मालूम वो कौन सी जमात है। अच्छा, तो आप हक पर हो? जमात से जी, कुरान हदीस वाले हैं। अच्छा, तो फिर कुरान हदीस में। अच्छा, तो आप जो है ये बात पर कितनी देर अटल रहेंगे? इधर मेरी बात सुनो। अब ये बात पर आप कितनी देर जो है कितनी देर टिके रहेंगे, ये बताइए। इधर सुनो ना मेरे प्यारे, ये बात पर आप कितनी देर टिके रहेंगे? देखिए आपने कहा मैंने सुना, अब मैं पूछ रहा हूँ। आपने कहा मैंने सुना, अब मैं बोल रहा हूँ तो आप सुनिए। आप इस बात पर कितनी देर टिके रहेंगे? मैं कुरान हदीस वाला हूँ। अरे मैं बोल दिया, तू समझ रहा नहीं रे भाई। लो मतलब कितनी देर टिके रहोगे, क्योंकि उनसे तो बात हो ना भाई। जब तक जान रहेगी जब तक टिके तो रहेंगे इंशाअल्लाह। तो ये बताओ, अहले हदीस मसलक से तुम गालिबन ताल्लुक रखते हो, ठीक है? मतलब तो, जमात है हमारी जमात। अच्छा, तो अहले हदीस के जमात वाले झूठ तो बोल। अरे यार सुनोगे निकाले उसका जवाब दो तुम। किसका हुक्म था जो इमाम अबू हनीफा के नाम पे मसला निकाले? सुनोगे हमसे तुम कह रहे हो तुम समझने की ताकत नहीं है।
अब तुम यार बड़बड़ की दुकान है यार, डिप्लोमा करके अरे ऐसे बात करोगे, मतलब अपनी कहोगे मेरी नहीं सुनोगे, मतलब जो है ऐसी बात संबित अरे लग रहा है यार अब तुम संबित मात्रा को फॉलो करते हो भाई, अहले हदीस को नहीं, कुरान और हदीस को नहीं फॉलो करके तुम संबित मात्रा को फॉलो करते हो, क्योंकि वो भी बहुत बोलता है ना, तुम जो है संबित मात्रा को जो है तुम भी उसी को फॉलो करते हो, वो भी बहुत बोलता है, सुनता नहीं है किसी की। अरे इधर उधर के बेकार के बात अरे तो सुनो मेरी तो बताओ क्या बोले, सुनो तो नाम पे कौन निकालो बोला तुम्हारे को। अब जो हम पूछ रहे हैं तुम कल की बात तो पूरी मुकम्मल कर लो, या कल की बात छोड़ दोगे, अब नई एक बात लेकर आए हो, ये तुमको तोप बना कर लाए हैं, तुमको सोच रहे बहुत बड़ा, तुम क्या हो आलिम हो? कौन सी बात कल की? तुम आलिम हो? अरे क्या चीजें कौन आलिम क्या? अरे यार मतलब तुम खाली सवाल करोगे, सवाल का जवाब नहीं दोगे, इतनी सलाहियत है नहीं तुम्हारे अंदर। तो बोलो ना यार, तुम हम तो बता दिए हमारी जमात कौन है। अरे यार तुमसे जो पूछ रहे मतलब, अरे यार तुम आलिम हो? तुम आलिम बताए कि जो सो आपके इमाम जो सो इमाम अबू हनीफा है, आप इमाम अहमद रहमतुल्लाह, क्या नाम है, अहमद खान, उनके मानने वाले। अच्छा हम जो पूछ रहे हैं बोल लिया, दरवेशन को तुम अपना रब क्यों बनाए पूछ रहे मत बोल लिया, हम बोले हम तो उनके इत्तेबा पहले हुकुम अल्लाह ने आसमानों से दिया, दरवेशन को अपना रब क्यों बना दिया? अब बताइए, आप तकरीर कर रहे हैं ग्रुप में आके, बताइए क्या है? ग्रुप भी है, ये फोन है। हाँ वो धोखे से कह दिया, मुँह जबान में निकल गया, फोन पर आप तकरीर कर रहे हैं, तकरीर सुबह सुबह इसीलिए निकलते आप। बोलो। अबे भैया सुनोगे? सुनो तुम आलिम हो? बयान करो, मौका दिया है तुम्हारे को। अरे तुम आलिम हो ये तो बताओ, देखो छुपा रहे यार अपने आप को। तुम आलिम हो? अरे अभी क्या रिसाले से क्या रहा तुम्हारा? अरे उमर यार क्या यहूदियों के एजेंट बने बैठे हो, हम कह रहे आलिम हो? हम अल्लाह के मानने वाले, नबी के मानने वाले यहूदियों। ठीक है, अभी साबित हो जाओगे कि अभी साबित हो जाओगे कि मानने वाले हो। इमाम रहबर कायदे आजम आला हज़रत हकीम मोहम्मद जनाब, तुम्हारी भाई जो है यूट्यूब पर जाएगी तो क्या फैसला करेंगे यूट्यूब वाले, वो तुम ही जानो, समझ रहे हो? मुनाफिक है यही समझ अभी सुन ही नहीं रहा है, पागल हो गया, इसको सदमा लग गया। आप कह रहे हैं सुन रहा तो आ गए अपनी, अरे यार अवकाश पर आ गए जो पैरवी करने वाले तो तू बोलता तू खाली बीमारी, तुम खाली हो एकदम, डिब्बा हो, कुछ नहीं हो तुम भी समझ से आप निकला की बीमारी है क्या? डिब्बा तो तू दिख रहा। हमने ये बोला था, अबे तो जो चूहा तुम्हारे पास फोन लगाया था, इमाम अबू हनीफा ने दिया अबे मुंह में बाबा सीर है तुम्हारे, ये बताओ मैं हम जवाब दे, अबे जब तुम अबे बोलने दोगे तभी तो जवाब देंगे, कैसे दे दे जवाब? चल बयान कर। हाँ तो तुम आलिम हो? बयान कर बाबा। अरे यार आलिम हो बोल। अरे अच्छा ये बताओ कम से कम जो, अरे आवाम को ये तो पता होना चाहिए कि बात कर रहा है वो कौन है। बात तुम जब स्टेज पे करके बयान करते तो पहले तुम आलिम हो क्या पूछते? तो मतलब तुम आए हो, तुमको वो चूहा लेकर आया है जाहिल है तो बनाकर, तो कम से कम तुम्हारा तारुफ तो हम जान ले कि तुम आलिम हो कि सड़क छाप हो। सुनो मेरी बात, हमने तुम अब बज रहे हो, अक्लमंद है, इल्म वाले है, इसलिए नबी की इत्तिबा और पैरवी कर रहे हैं। हमारे इमाम रहबर कायदे आजम आला हज़रत हकीमुल उम्मत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम अक्लमंद है, ये हम अक्लमंद लोगों के लिए जाहिल के नाम पे मसला बना रहे, इमाम अबू हनीफा के नाम पे और बरेली धर्म के। अबे भैया तकरीर करने आए हो गुरु, अबे तकरीर करने आए हो फोन पे, हमें तकरीर ना सुनाओ। अगर ये ग्रुप नहीं होता कि फोन पे बात हो रही थी, चल हम कह रहे हैं कि फोन पर तुम तकरीर हमें सुनाने आए हो तो ये बता दो फिर। चलो बयान करो। हम ये कह रहे हैं कि हमने उससे कल कहा था वो साहिल से कि कोई आलिम लाना, वो सड़क छाप को उठा के ला रहा, और तुम भी जो टाइम बर्बाद कर रहे हो। अबे कोई आलिम लाओ तुम अपने में।
अबे तुम आलिम हो, ये तो बताओ। साहिल साहब हमने जो सवाल किया उसका जवाब दो। बोलो कितने बड़े बुलबुल हो, देखो आवाज में रिकॉर्डिंग सुनेगी तो क्या कहेगी तुम लोगों को। मैं शर्म आ रही तुम लोगों के ऊपर आज। तुम तुम्हारे धर्म को बचा सक रहे, तुम्हारा कौन है तुम्हारे बात करने के लिए सामने वाले की बात तो सुननी पड़ती है ना, ये बोलते ही रहोगे खाली। करना बयान तो कल हमने जब कहा था उससे कि जो है कोई आलिम लाना, सड़क छाप ना लाना, वो फिर कोई सड़क छाप उठा लाया। अब बताओ तुम भी टाइम बर्बाद कर रहे हो। कोई आलिम लाओ, इल्मदार जो लगे। ये भागने के बहाने छोड़ और अरे यार अब तुम अपने से जज करते रहो, जजमेंट दे रहे हो, भाग रहे हो, बोलने दे रहे हो, बुरी कह रहे हो, भाग रहे हो। अरे तुम्हारे सारे सवाल का जवाब दे दिया जाएगा, लेकिन तुमसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है तुम आलिम हो? नहीं है बोलो। नहीं हो आलिम? तो यही तो इतनी देर से पूछ रहे हो, तो तुम पहले बता देते। तालिबे इल्म, हाँ बस अब बात खत्म हो गई। तुमने बता दी, बात पहले बता देते, बज रहे हो स्पीकर के तरीके से। ज्यादा बड़बड़ नहीं करना, जब जवाब दो। हाँ तो तुम्हारा एतराज क्या है बताओ? हमारा इतना कुछ भी नहीं है। आप जो तो बरेली मसलक कितने बड़े तुम अच्छा सुनो मेरी बात, कितने बड़े तुम झूठे आदमी हो। तुम्हारी जमात जो है झूठी पे होती है। अभी तुम्हें एतराज कर रहे थे, अभी हमने तुमसे पूछा तुम्हारा एतराज क्या, तुम करो। मेरा एतराज कुछ नहीं है। अभी देखो उससे पहले साहिल ने जब हम लोग के पास आया, सुनो मेरी बात, सुनो तुम लोग सच्चे हो। अरे सुनो यार, सच्चे हो जो तो अपना आलिम और दरवेशों को अपना रब क्यों बना लिया? तुम लोग सच्चे हो ये बताओ। मेरे पास आया, सच्चे हो, सही हो ना तुम लोग? भाई नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे को पूछ रहा हूँ। अरे यार जो जितना डर गए हो तुम लोगों से, इतना डर गए हो कि बात नहीं कर रहे। अबे तुम सच्चे हो? आगे दिवस तो पढ़ा नहीं है तुम्हारे को। यार बराबर नहीं आया, तुम किससे बात कर रहे हैं मालूम नहीं है तुम्हारे को। तो बात मैं तुम सच्चे हो? जो जवाब जो सवाल किया साहब ने भी जो है कवची साहब को लाइन में लिया। हमने कहा था इससे कि कोई काबे के इमाम को ले दौर कर मसला निकाल ये इसका हुक्म तुम्हारे पीछे दिया क्या? इमाम अबू हनीफा ने कुछ दिया? तुम लोगों ने कहा कि मेरे नाम पे मसला निकालना। तुम सच्चे हो? तुम्हारी बात यार, तुम्हारी बात का जवाब दे दिया जाएगा। ये जहालत से छूटेंगे। चलो तुम्हें गाली दिखाओ, कोई आलिम हो उसको लाओ। क्यों बना लिए इमाम? कोई आलिम हो तुम्हारे में तो उसको लाओ। तुम भी सड़क छाप निकल आए, समझे? वे साहिल, अगर तुम तो अपनी अम्मा की हलाली औलाद है तो कोई आलिम ना, ये क्या सड़क छाप उठा के लिया? बात कर लीजिए। हेलो, हाँ क्या हो ना, बात क्यों नहीं कर रहे? लीजिए सुनिए, इसको सुनिए, वहीं से बात शुरू करते हैं जहाँ से रुकी थी। तो गौर से सुनिए। आपने आप हो जाए अगो चलकर, मगर ए रजा जम्मू में कम है जब तक जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। यानी यहाँ पे हालात से ये शक फरमाया जो दुश्मन है मुँह जलाने के लिए आगे की बात करिए, उनको गालियाँ बताओ। सुनिए, ये सुनिए, आपकी अपनी है ना? हाँ बराबर मेरी। आपने इसमें कहा है कि आला हजरत का जो शेर है, राख हो जाए दो जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आपने इसमें कहा है कि आला हजरत सरकार ने मतलब जो कहा है या रसूल अल्लाह की कसरत करो। बिल्कुल। और एक बात और है, अगला जुमला भी मुलाहिदा करें। समझे? इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम थोड़ा, इसका हमें मतलब समझा दीजिए। आप अपनी बात साबित करिए इसी शेर पर। जो आपने अपना मतलब बयान करा तो मेरी बात सुन ले। क्या कह रहा हूँ, जो बात आपने इस रिकॉर्डिंग में कही है, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तुरंत, पुराने करीब में आया हुआ है कि नमाज के करीब मत जाओ। आगे आया क्यों? जब नशे की हालत में हो। ठीक है, अब कोई अगर इनको आधा पड़ेगा तो वो क्या करेगा फिर बताइए? तो खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो। अब आप मेरे सामने, आपके आमने सामने मेरी बात लाए, आप इसका मतलब मुझे आप समझाइए। अब आप इसका मतलब ये है कि जो दुश्मन है वो जलकर खाक ना हो जाए, लेकिन हम जो है जब तक जो है जिस्म में जो है साफे और दम बाकी होगा तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जो है वो करते रहेंगे। जी। और हाँ,
اس کا اگلا شعر کیا ہے؟ اس سے پہلے کیا آیا ہوا ہے؟ میں نے بتایا نا، آپ تمہارا جنازہ نکالتے ہیں، آپ تمہارا اس کے آگے ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش سے مولا کی دو مثل فارس نجد کے تو یہ کون ہر سنت یاد رہی؟ یہ سنت کون تمہارے ابا بتائیں گے؟ ارے سنو، سناؤ۔ قلعے کی راستے جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے نجد ایک فتنہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو جس طرح سے فارس کے جو قلعے ہیں جس طرح گر گئے تھے حضور کی پیدائش پر، اسی طریقے یہاں قلعے مراد ہے نہیں، یہاں قلعہ مکان مراد ہے۔ ارے بیوقوف ہو یار، یہ تجھے کس نے بتایا؟ یہ جو تو اپنی طرف سے گڑھ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ سن میری بات سن، فارس میں جو محلات تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے جو ہے تو اس میں زلزلہ پیدا ہو گیا اور جو اس میں دراریں پیدا ہو گئی، جو ہے بت کھانے جو گر بھی گئے، تو ہمارے جس طرح سے جو ہے مثل فارس کی طرح، یعنی جس طرح فارس میں جو ہے بت کھانے جب گر گئے، اسی طریقے سے نجد کے جو ہے جو قلعے ہیں جو ہے ان لوگوں کے جو ٹھکانے ہیں ان کو گراتے جائیں گے۔ کیسے گرائیں گے؟ کیسے گرائیں گے؟ مولا کی دنیا تم ایک بات بتا، جب تو سرکار کی تعریف کرے گا تو کیا سرکار کے دشمن کا رد کیے بنا تیری تعریف مکمل ہو جائے گی؟ سرکار کی تعریف خود جو ہے دشمنوں کا رد ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں سرکار کی تاریخ بیان کی جائے اور سرکار کے اصحاب کی تاریخ بیان کر کی جائے، ابو جہل کا چرچا نہ ہو، باب مکمل ہو جائے گا۔ ارے بھائی کرو نا چرچا، ہم کون منع کر رہا؟ ہم تو نہیں منع کرتے، ہم تو کہہ رہے کہ وہ رد واجب کرو، ہم تو نہیں۔ تم تو کہہ رہے ہیں نام لینا ہمارے لیے ضروری ہی نہیں ہے۔ نام جو ہے حکمت عملی کے طور پر جو نہیں کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اگر جو لے کیا نقصان ہوگا؟ کیا نقصان ہوگا اس کا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو کام ہے دینی وہ رک جائیں گے۔ یہ کس نے آپ کو سمجھ دی؟ یہ آپ نے کہاں سے جانا؟ یہ آپ کے یہ الیاس صاحب کی بھی ہے، یہی پھر ماننا ہوگا؟ الیاس صاحب کو یہی ماننا ہے، اس لیے تو سنیے میری بات سنیے، دیکھیے میں نے کیا کہا، میں ایک سوال آپ مجھ سے کرنا چاہیں تو آپ پہلے اگر بولنا چاہیں تو میں آپ کو موقع دیتا ہوں، بول سکتے ہیں، لیکن میں جب بولوں گا تو آپ کو سننا پڑے گا۔ نہیں میں سن رہا ہوں، بولیے۔ آپ نے یہ جو بتایا ہے کہ نام لینے سے نقصان ہوگا، تو آپ بڑے ہیں کہ الیاس صاحب بڑے ہیں؟ الیاس صاحب کا بھی یہی ماننا ہے۔ الیاس صاحب کا یہی ماننا۔ اچھا جی بتائیے، اب اعلیٰ حضرت بڑے ہیں کہ الیاس صاحب بڑے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے وقت میں اس طرح کا میں کیا پوچھ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت سرکار کے کیا زمانت سن گئے؟ مجھے بتاتا ہوں نا اعلیٰ حضرت سرکار کے زمانے میں کیا وقت معاملہ تھا، میں بتاؤں گا نا، جتنا جواب میں طلب کروں اتنا، کیونکہ کل میرا موبائل بند ہو گیا تو تم اپنے آپ کو بھاگ گئے، پتا نہیں تم نے سوچا کہ ڈر گئے ہم سے، کیا ہو گیا، میں تم سے کتنا پوچھ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت پڑھے، اب سنیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ٹھیک ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، میری بات سنے گا نہیں؟ بات سنے گا؟ ارے عارف صاحب کہاں سے بلا لا ہے اس کو؟ سنتا نہیں ہے، کام کریں یا تو بلا رہا ہے؟ پہلے تو تو بول لے، میں چپ ہو جا، چلیے میں خاموش ہوں، تو بول لے۔ مکمل کرو بات، مکمل صاحب سننے کی بھی صلاحیت رکھیں آپ۔ آج تمہارے الیاس کا ان کے ماننے والوں کے انشاءاللہ تعالیٰ سرکار کی طرف سے جنازہ نکال ہی دوں گا فتح برزگی سے۔ سنیے مکمل آپ بات کر لیجیے۔ ہاں، اب یہ مجھے بتائیے، آپ نے کہا آپ کے سامعین اکرام، میرا جو سنانا مقصد ہے وہ تم کو نہیں، ہاں ٹھیک، میں کہتا ہوں، سنیے، میں تمہارے لیے نہیں کر رہا ہوں نا، یہ عوام کے لیے کر رہا ہوں، عوام سمجھے اس لیے عوام کو سمجھانا ضروری ہے۔ سامعین اکرام، انہوں نے یہ کہا، جناب طاہر صاحب نے یہ کہا کہ جو ہے اگر نام لوگے تو اس سے نقصان ہوگا، یہ ایسی اور ان کے الیاس صاحب کی یہی سوچ ہے۔ میں زیادہ دور نہ جاتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھتا ہوں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تو اس کا مطلب سرکار اعلیٰ حضرت نے نام لیا، سامعین اکرام، اس کا مطلب سنیے، پھر بولے آپ، دیکھیں عارف صاحب ان کے منہ میں بریلی کا بات کر دوں گا میں، پھر بریلی کا بات کر دوں گا ان کے منہ میں، جو ہے ایڈریس کیجیے پہلے مکمل، بالکل مکمل بات ہی کر رہا ہوں میں، آپ بیچ میں بولیں گے تو بریلی کا بات کر دوں گا تمہارے منہ میں۔ ارے بھائی ہم بھی تلوار لے کے بیٹھے، اب آگے بڑھا، چلیے۔ ارے جنخوں کے ہاتھ میں یہ تلوار نہیں دی جاتی شیر رضا کی،
समझे? अरे जब तू अबू जहल का नाम लेने से तुम इतना करते हो, सरकार का अखलाक बयान करोगे, सरकार का अखलाक बयान करोगे। अबे जो हिकमत तेरे अब्बा को इलियास को पता थी, मेरी सुनेगा कि नहीं, जो हिकमत तुझे पता थी ये हिकमत आला हजरत को नहीं आती थी। आला हजरत का हुकूमत पता थी, लेकिन फिर मामला अलग था। क्या मामला अलग था? का मामला अलग था। नहीं तो आला हजरत से बड़े हैं क्या ये इलियास साहब? इनका इल्म ज्यादा है, छोटे हैं ना, तभी ज्यादा कर रहे हैं ना। नहीं तो ज्यादा इल्म है इनको। नहीं, इसलिए तो कहा उन्होंने याद कजुल के राज में लोग आज अपने जाल में से याद फंस गया। तूने क्या कहा? तूने इसे कहा, तूने ये कहा कि इसलिए वो रद्द नहीं करते कि वो छोटे हैं। आप यही नहीं देख आरिफ साहब देखिए, इसने बोला कि वो छोटे हैं, उसने बोला कि जब छोटे। अब मैं तुझे फिर पकड़ता हूँ, कह दिया ना उलझा है पौया के चतुर, तूने बेटा से भी लगा ली। साहिल साहब मुकम्मल ऐसी होगी एक जवाब। साहिल साहब एक मिनट, आरिफ साहब खामोश रहे, आरिफ साहब आप खामोश रहे। इंशाल्लाह कह दिया फतावा रज़विया से आज इसका जनाजा निकल के ही रहेगा इंशाल्लाह। मेरी बात सुन, आपने ये कहा कि छोटे हैं इसीलिए ही तो वो नाम नहीं लेते। मैंने कहा हिकमत है उनकी, आपने कहा कि वो बड़े। अच्छा चलिए मैं मान लेता हूँ, चलिए वो हिकमत अगर इनकी है तो ये हिकमत आला हजरत को हिकमत नहीं पता थी। ये आला हजरत के पास भी हिकमत थी, लेकिन ये तो उन्होंने क्यों नहीं इस्तेमाल करी? जिम्मेदारियाँ अलग है उनके। अबे जो आका कहेगा वही तो गुलाम कहेगा ना, ये वफादारी है ना प्यारे। अबे गद्दार, वफादारी तो वो है जो आका कहे वो गुलाम कहे। अरे सुनो, समझ तो सब रहे हैं, अब तुम अपनी इज्जत बचा के भागना चाह रहे हो। अपनी बात कर लिया। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, सिर्फ इतना जवाब दो, जो हिकमत आपको आपके इलियास ने आपने बताई, मैं कहता हूँ ये हक आपको किसने दिया? क्योंकि आला हज़रत फरमाते मेरा दीन और मजहब मेरी कुतुब से जाहिर है, इस पर कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ये हक तुमको दिया किसने कि जो आला हज़रत ने लिखा उसके मुताबिक न चलते तुम किसी और कुछ और जुमला इस्तेमाल करो, तो फिर आला हज़रत तो आला हज़रत ही ने क्यों नहीं जुमला इस्तेमाल करा जो आपने किया? देखिए रफ्तार और वफादार का जी बताइए, आप मुकम्मल करें। हाँ बिल्कुल मुकम्मल। आला हजरत ने जो फतवा दिया कि रद्द वारिस करना फर्ज है, तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ नाम नहीं ले रहे, हमारा तरीका सिर्फ अलग है। तो तरीका आला हजरत का तरीका अच्छा नहीं था? हाँ, आला हजरत का तरीका अच्छा नहीं था? बिल्कुल अच्छा था, लेकिन हम तो आपको अच्छा तरीका क्यों छोड़े पड़े हो? उस पर अमल नहीं कर सकते। मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं क्यों नहीं कर सकते? आला हजरत का फरमान है इस पर कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है। नहीं, आप क्यों नहीं रह सकते? सुनो मेरी बात, मैं इसीलिए तो बताया ये इश्क की तलवार जनों के हाथ में नहीं दी जाती है। मेरी बात सुनो, मुकम्मल सुन लो, फिर उसके बाद जो है वो नहीं करो। करो चीज ये है, हाँ सुनो, आला हजरत ने जो कहा कि मेरा दीन और मेरा जो है ईमान अकीदा जो है मेरी कुतुब से साबित है, इससे मुराद जो है उस अकीदे की बात हो रही है जो उनकी कुतुब से जाहिर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर जो है कायम है। लेकिन जो यहाँ पर बात आ रही है नाम ले लेकर रद्द करना, तो नाम ले लेकर हम रद्द करेंगे तो इससे सुन्नियत का नुकसान होगा। तो जिसको फितना उठे उस काम को करने से मना फरमाया गया है। अभी से पूरी कल्याण मुकम्मल पूरी करें, उस काम से रुक जाओ जिससे फितना पैदा हो। अब सुन लो, मुकम्मल करें, आप मुकम्मल करें। सुन्नियत का नुकसान ये सबसे बड़ा फितना है, इसलिए हम जो है ये जो है नाम ले लेकर रद्द नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह रद्द करते हैं हम सबका। हो गया आपका? हो गया नाम किसी का नहीं ले सकते, मौलवी है आप, क्योंकि इससे जो है मसलक का नुकसान होगा। ठीक है मौलवी है आप, मौलवी है आप। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मौलवी है? नहीं मैं मौलवी नहीं। चलो अब आप नाच में से हैं। जी हदीस पाक कौन सी हदीस पाक में आया कि जब मतलब जो आपने जो जुमला बयान करा ये कौन सी हदीस पाक में आया, जरा मुझे बताएं। हदीस में है, कौन सी हदीस पाक में है ये बताएं। देखूंगा नहीं, यहाँ पर दो अभी या तो मीनवान वही, चलो ठीक है मीनवान वही जुमले बोलो, चलो ठीक है। आपको मैंने माफ किया, हदीस पाक ही पढ़ दो, वो तो जहन में होगी। मैंने कहा ना हवाला मेरे जहन में नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ हवाला मत दो ना, चलिए मफहूम बयान करते, मफहूम बयान करते कर दिया। कैसे? एक बार और कर दे। कितने का दरवाजों को जो खोलेगा जो है वो जो है उस पर जो है लानत है।
तो इस तरह की बातें हैं, ठीक है। इसका मतलब आपको कुछ नहीं, मैं हदीस पाक पढ़ूं। हाँ बड़ी मेरे आका ने फरमाया, और ये फरमान किसी अहले गैर का नहीं नकल किया है, आला हज़रत सरकार ने फरमाया, मेरी उम्मत में जब फितने जाहिर हो तो उलमा पर फर्ज है कि अपना इल्म जाहिर करें और हर एक का नाम लेकर सद्दे बात करें। अवाम पर फर्ज है कि उलमा से बात करवाए और दीनी मामलात में हिस्सा ले। समझ रहे? इसका मतलब हमें समझाइए। हाँ तो उससे ये तो हो गया ना, ये चीज हो गई, जब तो कायम हो चुकी है। और आला हज़रत फरमाते हैं कि जान बूझ कर जो आलिम जान रहा है सब कुछ, उसके बाद भी अगर वो खामोश है तो आला हज़रत फरमाते हैं वो गूंगा शैतान है, मोबी नहीं है। देखिए अब हमें आप फिर देखिए बीच में बोले आरिफ साहब, मैंने मुकम्मल बात सुनी यार, मैंने मुकम्मल इसकी बात सुनी आरिफ साहब। देखिए साहिल साहब आपके अंदर ये इतनी बड़ी बीमारी, लोगों के कहीं और बवासीर होती है, आपके लगता है मुंह में बवासीर है। मेरी बात मुकम्मल सुन लीजिए। अच्छा ठीक, कल फिर एक बार मौका दिया तो इसको तू भी ये क्या याद रखेगा किसको पाला पड़ा था, एक बार और मुकम्मल कर ले तू अपनी बात। सुनिए आपने जो कहा ना कि जो है ये आलिम का फर्ज है, तो हुज्जत तो कायम हो चुकी है, वफात शरीफ आला हज़रत पर तो हुज्जतुल्लाह कायम हो चुकी है। तो हुज्जतुल्लाह कायम हो चुकी है तो हमको फिर से जो है हुज्जत करने की या कुछ और दलाइल पेश करने की जरूरत नहीं है। हमारा मामला अब ये है कि हम जो है लोगों का ईमान बचाना चाहते हैं बस। अब जो है हम जो है जिसका नाम लेंगे तो उससे दीन का तबलीग का काम रुक जाएगा, तो हम वो नहीं चाहते, बस ये हमारा मिशन है बस। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आला हजरत ने नाम लिया, सही किया कि गलत किया? बिल्कुल सही किया, लेकिन तो आप आला हजरत के तरीके को छोड़कर अपना तरीका क्यों ईजाद कर रहे हैं? हम आपकी क्यों माने? आप कौन हैं? आपके इलियास खुद कहता है कि मैं कभी मदरसे में नहीं गया, आप उसको अल्लामा साबित करने तुले। वो खुद कहता है कि मैं कभी मदरसे में नहीं गया, मैं जाहिल हूँ। बोलिए नहीं बीच में, बोलिए नहीं बीच में। नहीं जाने से कोई जो है खुद कह रहा है कि मैं जाहिल हूँ, नहीं जाने से कोई जाहिल नहीं हो जाता। अब एक बात मैं तुझसे पूछता हूँ साहिल साहब। देखिए साहिल, मैंने क्या कह रहा तू? आला हज़रत सरकार मदरसे में गया। अबे अल्लाह से डर, आला हजरत की मिसाल दे रहा। आला हजरत सरकार के वालिद के बारे में तू क्या जानता है? चलता फिरता मदरसा तो वो खुद है। हाँ तो 10 साल तो है, उन्होंने भी पढ़ा है ना, मौलाना इलियास कादरी साहब ने भी मुफ्ती आजम से पढ़ा है 10 साल। अबे तो खुद कहते हैं कि मैं कभी मदरसे में नहीं गया। हाँ तो मदरसे में नहीं गया, लेकिन पढ़ा। अब सुन एक बात होता, मैं तुझसे एक बात पूछता हूँ, मैं तुझसे एक बात पूछता। देख तूने ये कहा था कि मैंने कहा आला हजरत सरकार ने जो नाम लेकर फरमाया है, आपने कहा कि नाम लेने से नुकसान होता है, इसके मतलब आला हजरत ने मसलक का नुकसान किया है। उस जमाने में नहीं हुआ, अब होगा, अब नुकसान होगा। अब क्या ऐसा मामला है जो नुकसान होगा? अब तो आला हजरत नाम भी ना लो, इसके मतलब नुकसान होगा आला हजरत के नाम से? आला हज़रत के नाम से नहीं, आला हज़रत का नाम नहीं। फतावा रज़विया मतलब जब तक अलमारी में रखी रहे तो जिंदाबाद, बाहर निकाल के पढ़ दो तो गलत। ये क्या मामला हुआ है? सबसे ज्यादा फतावा रज़विया हम ही सकते हैं भाई। नहीं तुम पढ़ते हो तो फिर ये बताओ, जो आला हजरत सरकार ने जो नाम मेरे साथ ये जो आला हजरत ने जो नाम लेकर जितना रद्द किया अदाई के बख्शिश में, सही किया गलत किया? बिल्कुल सही किया। अच्छा, अब जो पढ़ेगा पढ़ने वाला क्या पढ़ेगा? यही पढ़ेगा या बदल के पढ़ेगा? बिल्कुल नहीं पढ़े, लेकिन हम जो है बयान अपने जाहिर नहीं कर सकते। क्यों? इससे कितना होगा? तुम ये दलील कहाँ से लेकर आए? ये दलील दो हमें आला हजरत से, हम यही तो तुमसे पूछ रहे हैं। इसकी तो हिकमत बोलते हैं। सुनिए हिकमत इसको। अच्छा एक बात सुन, सुनिए, अगर एक इंसान साहिल, मैंने तेरी बात सुनी, आज तू मेरी सुनेगा। तू बहुत बड़बड़ करता, तो रहनुमाई की जरूरत है। एक बात बता, एक इंसान है जो शराब दिन भर पीता है, अब अगर सामने वालों को मना करता है कि नहीं मैं इसको हराम समझता हूँ तो मत पियो, अब अपने आप पी रहा, तो बता वो सच्चा है या धोखा दे रहा है? धोखा दे रहा है। पक्का? कितनी देर इस अकीदे पे टिका रहेगा तू? अरे भाई शराब खुद पी रहा है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, शराब खुद पी रहा है और ये भी कह रहा है खुद पी भी रहा है और सामने वाले को मना कर रहा है, और ये भी कह रहा है कि मैं इसको गलत समझता हूँ, ये भी कह रहा है कि मैं इसको गलत ये भी कह रहा है कि मैं उसको गलत समझता हूँ। हाँ तो गलत समझता है वो अच्छी बात है, बोल रहा है अच्छी बात है, लेकिन जो पी रहा है वो गलत है। पक्का? हाँ पीला। कितनी देर इस पे टिके रहोगे? हमेशा टिका रहूंगा। बोलिए, सोच लो, एक बार मौका दे रहे हैं, नहीं तुम बोलो फिर मौका नहीं। मैंने कहा ना, अगर वो लोगों को मना कर रहा है तो अच्छा काम कर रहा है, और जो है लेकिन जो है उसको बुरा जान रहा है वो भी अच्छा कर रहा है, लेकिन पी रहा है ये गलत कर रहा है। देख लो यार, फिर तुम अपने अमीर को लपेट दोगे, फिर हमसे नहीं कहना। नहीं बिल्कुल नहीं लपेट रहा हूँ मैं, इसलिए। तब सुनिए फिर। अच्छा आप खामोशी से सुनेंगे?
हाँ सुन रहा हूँ। अगर तुमने इसको गलत साबित करा ना नहीं बिल्कुल गलत तो साबित मैं है। क्या कर रहा हूँ, मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ, अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, अगर तुमने इन जुमलों को गलत साबित किया तो अल्हम्दुलिल्लाह बखुदा मैं कहता हूँ कि मैं आपके मुंह मांगा इनाम दूंगा, नहीं तो आप वादा कीजिए आप तौबा करेंगे। चलिए ठीक है, मैं जो है आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये मैं नाम नहीं लूंगा, ये किसकी बात मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ बात पढ़ूंगा। आप वादा कीजिए कि अगर उसमें मेरे लफ्ज गलत निकले तो मैं तौबा करता हूँ, अगर मेरे जुमले सही निकले हवाले के साथ तो आप वादा कीजिए आप आज ही तौबा करेंगे इस सब दावतियों के मामले अगर से। आपकी बात मुझे मिल आई तो मैं जो है अपने रुजू कर लूंगा। आपके पास हिमायत नहीं करेंगे ना फिर दावतियों की। हाँ चलिए आप। चलिए ठीक है, मैं सुनिए मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, पहले पढ़ता हूँ ठीक है। बाज लोग इस्लाम का लिबादा ओढ़कर इस्लाम को मॉडर्न अंदाज में पेश करने की नापाक कोशिश करके मुसलमानों को ईमान को लूटने में मशगूल है। इस तरह के बेहुदा मॉडर्न मौलवी मशगूल है, इस तरह के बेहुदा मॉडर्न मौलवी बहुत कुछ इस्लाम की जड़ें खोखली कर रहे हैं। अलगरज ये कि टीवी के जरिए बदअमली बदअखलाकी बदअकीदगी फैलाने में सिलसिला जोरों शोरों पर है। ऐसे हालात में टीवी घर में रखना ये बहुत खतरनाक है, अगर आपके घर में भी हो तो फोड़कर बाहर निकालकर फेंकना जरूरी है। इतनी बात सही है कि गलत? बिल्कुल सही है। सही है। अब यही इंसान आगे क्या कहता है वो भी जुमला नोट करें ठीक है। साथ में बयान जिंदगी में 2 बार टीवी पर मेरा बयान आया है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ईमानदारी से बताना, आपके ऊपर है कि आप जो जवाब देना चाहें दे सकते हैं, आपका ये इख्तियार है। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, इलियास सत्तार साहब टीवी पर कितनी बार मदनी चैनल पे सिर्फ 2 ही बार आए थे आज से 4 साल पहले? ईमानदारी से बताना, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ। 4 साल पहले का बयान नहीं है, ये जो है ये शुरू का बयान है जब मदनी चैनल लॉन्च हुआ था उसमें खाली। मैं बताऊँ कब का है, मैं बता दूँ कब का है ये बताइए, मदनी चैनल कब लॉन्च हुआ था बताइए? 2008 में लॉन्च हुआ। ठीक है पक्का? हाँ 2008 चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है। मैं जो बयान पढ़ रहा हूँ ये 2006 का पढ़ रहा हूँ ठीक है। सुनिए सुनिए, मैंने क्या कहा, सुनते रहिए, ऐतराज इस पर नहीं है जो हो गया, ऐतराज आगे वाली बातों पर है वो सुने। आपने वादा करा है कि आप ध्यान दे दें, सुनिए मैं जवाब दूंगा। हाँ सुनिए, साथ में बयान जिंदगी में 2 बार टीवी पर मेरा बयान आया है, इस पर एतराज नहीं है, आगे सुने। और टीवी की मजम्मत जब से होश आया तब से कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में टीवी आज तक घुसा नहीं है, और मैं टीवी का क्या मुखालिफ हूँ, मेरे बच्चे भी मुखालिफ हैं, टीवी को मेरे बाद घर में घुसने नहीं देंगे ठीक है। अब अच्छा ये बताओ, अभी इलियास साहब जिंदा हैं कि मर गए? बाहयात हैं आपके मुताबिक, तो आप बताएं अभी मदनी चैनल में उनके घर चलता है कि नहीं चलता है? लेकिन ऐसा जवाब देते हैं। हाँ बोले। जब इन्होंने ये बयान दिया था उस वक्त जो है हमारे पास कोई जो है चैनल नहीं था। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ देखिए ना, जैसे इन्होंने ये कहा है कि मेरे बाद भी घर में घुसने नहीं देंगे, तो आज उनके घर में मदनी चैनल है कि नहीं है उनके रिश्तेदारों में, वो मुझको बताएं आप। सुनिए इसकी बात मुकम्मल सुन लीजिए ना, उसके बाद आप देखिए आप जो बात कर रहे हैं वो 2006 की कर रहे हैं, मैं आपकी कर रहा हूँ, आप बताइए। मैं बता रहा हूँ, चलिए मुकम्मल की। उस वक्त जो है हमारे पास कोई चैनल नहीं था, तो उस वक्त कैसा उनको जो है ऑफर आते थे कि आप जो है हमारे चैनल पर जो है आप बयान करिए या प्रोग्राम में शरीक हो जाइए, तो उस वक्त जो है उन्होंने उसका बॉयकॉट किया था, इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं टीवी पर नहीं आऊंगा। लेकिन जब हम लोगों को किसका चैनल मिल गया दावत इस्लामी वालों को, तो फिर जो है सिर्फ मदनी चैनल को जायज बोलते ना देखने को जायज कहा गया है। आज भी जो है अमीर रसूल में सिर्फ मदनी चैनल को भी देखने को जायज कहते हैं, बाकी किसी चैनल को देखने को जायज नहीं कहते हैं। बात समझ रहे हैं? इसमें बात मुकम्मल करें आप, आती है जल्दी मुकम्मल करें। और ना एडवर्टाइजमेंट आती है, ना म्यूजिक का इस्तेमाल किया जाता है, ना औरतों को दिखाया जाता है, तीनों चीजें उसमें नहीं होती है। वो चैनल जो है में सिर्फ तकरीरें और आवाज होती है, तो वो देखना बिल्कुल जायज है, इसमें कोई भी जो है कुछ भी परेशानी नहीं है, क्योंकि उलमा का देखिए वो जायज है कि नाजायज है उस पर बहस नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ
आपने ध्यान लगता है आपने अपने कान में तेल डाला नहीं है। उस वक्त के माहौल के एतबार से कहा। और अब जो इन्होंने क्या कहा उस वक्त नहीं, उस पे देखें उन्होंने कहा है मेरे बच्चे मुखालिफ टीवी को मेरे घर में मेरे बाद घुसने नहीं देंगे। अभी तक वो जिंदा है, अभी कैसे घुस गया मुझे ये बता। उस वक्त जो है उसका चैनल नहीं था उनका, इसलिए उन्होंने कहा कि घुसने नहीं देंगे। अभी ये कह रहे हैं मेरे बाद, जुमले देख, मेरे बाद मरने के बाद घुसने नहीं देंगे। अभी तो जिंदा है, तो इलियास ने क्यों नहीं मना करा कि अभी मैं जिंदा हूँ और मैंने इस पे ये बयान दे रखा है कि नहीं तुम मत लगाना मेरे बाद, इतना भरोसा कि मेरे बाद भी घुसने नहीं देंगे। उसका जवाब दिया उन्होंने कि लोगों का जो है अकीदा खराब हो रहा है टीवी से और सारी चीजें, उन्होंने बयान दिए। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए आपने वादा करा था लेकिन आप वादा खिलाफी कर गए। मैं जानता हूँ, मैं यही उम्मीद थी आपसे, यही उम्मीद थी, क्योंकि मैंने पहले ही शेर पढ़ा था, उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, वही हाल तुम्हारा। आगे सुनिए, मुझे पता है, आगे सुनिए, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। मेरे बाद घर में नहीं घुसने देंगे, ये फ्यूचर की बात बताई थी उन्होंने, फ्यूचर की, प्रेजेंट की नहीं बताई थी, पास्ट की नहीं बताई थी, फ्यूचर की बताई। जब आगे तो खामोश 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 नहीं, खामोश। आगे सुनिए ना, मैंने, अरे सुनिए ना यार, सामने अब हम सुनेगी तो क्या कहेगी, यही कहेगी इसके मुंह में बवासीर है। जो हक वाला होता है, जो सच्चा होता है, वो तसल्ली से करता है ना बात। तो फिर मैं तेरे को मौका देता हूँ, तो फिर बोल ले एक बार, मैं मौका देता हूँ, मुकम्मल कर। और जब मैं बोलूँ तो बोलना नहीं तो फिर बरेली का बांस लेकर हसमती का डंडा लगाऊंगा। मेरी बात सुना यार, उस वक्त मुझे पास कोई चैनल नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि जो है हम जो है टीवी को घुसने नहीं देंगे और जो है मेरे बच्चे को घुसने नहीं देंगे। लेकिन फिर बाद में मशवरा हुआ, उसके बाद जो है ये फैसले जो है कि बिना टीवी पर आए जो है टीवी तब्दील करना इस जमाने में मुश्किल है, इसलिए टीवी लॉन्च करना पड़ेगा। तो एक चैनल मगरी चैनल के नाम से लॉन्च किया गया, जिसमें जो है कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं रखी गई, कोई जो है औरतों को नहीं दिखाया गया, कोई गुनाहों भरे सिलसिले उसमें नहीं डाले गए। फिर इसको जो है जायज कहा गया। अब भी जो जायज है सिर्फ मगरी चैनल देखना ही जायज है, बाकी कोई भी चैनल देखना जायज नहीं है, ये इसका खुलासा है। ठीक है, आप जो बोलोगे आप उस वक्त टीवी को हराम है, तो टीवी को मुतलकन हराम नहीं चाहता। टीवी में जो कुफरी जो गुनाहों भरे चैनल आते थे उसकी वजह से उसको हराम कहा गया था। अब वो गुनाहों भरे चैनल का मामला नहीं है, सिर्फ मगरी चैनल तो उसको हराम नहीं कहा गया है, इसलिए अब उसको देखने को जायज कहा है उन्होंने। हो गया? हाँ बोले। हो गया? हाँ आगे बढ़ूं मैं? हाँ बोले। सामने ग्रंथ समाप्त करें। मेरे बाद घर में नहीं घुसने देंगे। आगे सुने, ना मैंने ऑफ किया ना ऑन किया जिंदगी में, तो मैं इस बात की वजाहत कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ 2 बार टीवी में मेरी आवाज आई है, चेहरा नहीं आया है। गौर से सुनिएगा, आवाज आई है, चेहरा नहीं आया। लेकिन अब क्या करें, चेहरा इतना बदसूरत ही था, कैसे आता। अब मैकअप लगा के शायद खूबसूरत हो गया हो। अब आगे देखिए, तो इस पर अगर किसी को लगता है कि मैं टीवी पे आया, इधर सुनिए, मैं उन्हीं का बयान पढ़ रहा हूँ, मैं अपने घर का बयान नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं उन्हीं का बयान पढ़ रहा हूँ। अभी तुम सफेद हो जाओगे, अभी तुम्हें देखना जनाजा निकल जाएगा जवाब देने, कितने बातें बनाओगे यार। आगे सुनिए, मेरी आवाज आई तो चेहरा नहीं आया, तो इस पर अगर किसी को लगता है कि मैं टीवी पे आया हूँ, तो टीवी पर नहीं आया, सिर्फ आवाज आई है। ये क्या कह रहे, सुनो, ये कह रहे हैं अगर किसी को लगता है कि मैं टीवी पर आया हूँ, तो मैं टीवी पर मैं नहीं आया, मेरी आवाज आई है। तो इनकी ये बात सच्ची है? पक्का? उस वक्त जो है मैं क्या पूछ रहा हूँ, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो, जितना पूछे जरा। आगे सुनिए क्या कहते हैं, आगे सुन। नबे साहिल, कहाँ से इसको पकड़ के लाया यार तू? आरिफ भाई, कहाँ से पकड़ के लाया इसको तुम यार? मुकम्मल कीजिए। सुनिए आगे क्या कहता है, और आइंदा भी चेहरे के साथ होए टीवी पर मेरा आने का कोई इरादा नहीं है। अब मेरा एक मिनट खामोश रहिए, मेरे मुखातिब आप नहीं है, एक मिनट, मेरे मुखातिब आप नहीं है, आरिफ साहब आप मुझको जवाब दीजिए। ये जो कह रहे हैं कि मेरा आइंदा टीवी पर आने का कोई इरादा नहीं है, ये सही कह रहे हैं ना? ये जी सच्ची बात होगी ना इनके लिए? ये बिल्कुल अगर अब वो आने लग गए तो इसका मतलब वो उन्होंने झूठ बोला था ना उस वक्त। जी बिल्कुल।
अच्छा आगे सुनिए, आगे सुनिए, आगे सुनिए, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। आगे तो सुनिए, पूरी बात तो मुकम्मल करने दीजिए, फिर तुम बोल रहे थे यार मुकम्मल क्यों नहीं करने देते? नहीं कोई ऐसा मुकम्मल करने दो, इसका जवाब मुकम्मल तो करने दो, मुकम्मल तो करने दो। फिर मैं बोलने तो देता तो बोलने, मगर फिर भी क्या करें इतने डंडे पड़ जाते हैं हशमतियत के कि तुम कोई ना कोई बात बाकी रह जाती है। सुनिए, आइंदा भी चेहरे के साथ टीवी पर मेरा आने का कोई इधर सुन, मैंने किसी का नाम नहीं लिया अभी, अभी नाम लेना शुरू करूंगा। मेरा अंदाज अभी तुम जानते नहीं हो, घुमाना चाह रहे हैं। मेरे अंदाज तुम जानते नहीं, मैं नहीं घुमा रहा हूँ। कुछ भी अगर हलाली हो, अगर किसी रंडी की औलाद नहीं है, तो अपनी माँ की औलाद है ना, तू मेरा हवाला ही गलत साबित कर दे। तुमने कैसे कहा मैं घुमा रहा हूँ? घुमा रहे हैं ना, मैं घुमा रहा हूँ। आगे सुन, पहले बात मुकम्मल करने के फिर घुमाना बात तो। अरे भाई साहब, बात मुकम्मल तो करने दीजिए यार। ऐसा लग रहा है आपकी दुखती रख पे किसी ने हाथ रख दिया जो उछल रहे हो यार। सुनिए, आइंदा भी चेहरे के साथ टीवी पर मेरे आने का कोई इरादा नहीं है। मैं टीवी का कल भी मुखालिफ था, आज भी हूँ, और इंशाअल्लाह मरते दम तक टीवी का मुखालिफ रहूंगा। इसलिए टीवी ने मेरी नबी की उम्मत को तबाह कर दिया। अब मैं अपनी बात करूं आगे। ये कह रहे हैं जैसे अब फिर पीछे पहुंचिए, जो रोज शराब पीता हो और ये कहता है शराब हराम है और खुद पीता भी, तो आपने कहा था कि वो धोखा दे रहा है। अब आइए, इन्होंने कहा था कि मैं टीवी का कल भी मुखालिफ था, आज भी हूँ, आइंदा रहूंगा। और टीवी पर भी मदनी चैनल आता है ना, आता है कि नहीं? जवाब हाँ या ना में? हाँ चलिए आगे। जो चीज कल तक हराम थी आज वो जायज कैसे हो गई? अब इनका मदनी चैनल को टीवी पर आने लग गया तो टीवी ठीक हो गई। अगर वो गलत है, मेरी बात मुकम्मल होनी चाहिए, अगर वो गलत है तो जैसे अगर वाकई में दीन का दर्द था तो जैसे कल उनकी आवाज आती थी, क्या ऐसे आवाज सिर्फ मदनी चैनल पे आती, चेहरा ना दिखाते तो क्या दीन का काम नहीं चल सकता था? अगर दीन ही का चलाना था तो इलियास को चेहरा देखकर इतना खूबसूरत तो नहीं जो खुदा याद आ जाए जो दीन का काम होगा। जवाब दो। नहीं, पहले जवाब नहीं दें, पहले मेरी उस बात जो मैंने पीछे सवाल किया था कि जो शराब पीता हो और शराब को हराम भी समझता हो, लोगों को मना करे, खुद पीता हो, तो आपने कहा था वो धोखा दे रहा है। आरिफ अवामी अहले सुन्नत से मेरी गुजारिश है, खुद फैसला करे। ये कह रहा है कल तक मैं टीवी का कल भी मुखालिफ था, आज भी हूँ, आज भी हूँ, आइंदा रहूंगा। ये मेरे बाप के जुमले नहीं है, ये इलियास मतलब के गद्दार के जुमले हैं जी। सुनिए, पहले आपकी जो पहला और ये भी कहा कि मेरी टीवी मेरे नबी की उम्मत का, तो मेरी उम्मत को बर्बाद करके रख दिया। अगर जो कल तक बर्बाद कर रही थी टीवी, घर से निकालो, मारो।